Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Nishwata and today I am going to teach you a poem for class 12 CBSE boards, and that is A Thing of Beauty by John Keats. Okay, and I have already covered two of the other poems, that is My Mother at 66 and Keeping Quiet. So you can go watch that as well, and I have discussed the question paper and the patterns as well. So in this video, I'll cover A Thing of Beauty, which in a very brief manner, because that poem is very easy और इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब out of place है. The things are very common, जो हम we can answer all of these questions from A Thing of Beauty. हम अपने वर्ड्स में, अपने थॉट्स में भी आंसर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स मोर अबाउट रोमांटिसाइजिंग नेचर. ओके, एंड विल सी इन फर्दर वीडियोज की व्हाट इज इट अबाउट. So I'll not make this video very long. I'll try to cover it in 10-15 minutes. आप जल्दी से इसको ऐसे देख लेना. एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं एक आंसर बना रही हूँ फॉर ऑल द चैप्टर्स, जिसको आप अपने हर आंसर में यूज कर सकते हैं, एंड वो बहुत बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू रीड अ लॉट. ठीक है, तो एक कंपोज करके मैं एक जगह एक ऐसा आंसर बना रही हूँ जो आप सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर द एग्जाम. ओके, सो या, that is it. And also I'll read about the poet, which is not very important. You can skip about the poet part because it's not important. ये एग्जाम में नहीं आता है. सिर्फ आपको पोएट का नाम और थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, कि नाम पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं. सो यू कैन स्किप दिस एंड उसके बाद से विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशंस, थीम्स एंड वॉट एवर इम्पॉर्टेंट इज. ओके, फाइन. अबाउट द पोएट. John Keats, 1795 to 1821, was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secrets, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in the terms of language. Then, I think the enchanted youth resolves to seek around and so wandered away, forest in the round. ठीक है, look, it's not that important. मैं ये बता देती हूँ कि this poem is not written solely for the purpose of writing a poem. ये एक poem के कलेक्शन का पार्ट है, एंड दैट इज उनका एक पोएम है जॉन कीट्स का, दैट इज एंडीमियन. एंडीमियन जो पोएम है उसमें से उसका एक एक्सर्प्ट है, दैट इज अ पार्ट टेकन फ्रॉम दैट पोएम. दैट इज इट. ये एक अलग से कोई पोएम नहीं है. ठीक है, आफ्टर दैट विल बी कमिंग फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. बिफोर दैट जस्ट कीप इन द माइंड कि जॉन कीट्स जो थे वो एक रोमांटिक पोएट थे, एंड वो रोमांटिक पोएट इन द सेंस कि वो जितनी भी चीजें रोमांटिसाइज करते थे. इफ ही सीज अ ट्री, तो उस ट्री को वो इतने एस्पेक्ट से देखते थे, इतने साइड से देखते थे कि यू विल गेट अ डिफरेंट विजुअल. फिर आप बहुत अलग तरीके से एक नॉर्मल से ट्री को देखोगे. तो रोमांटिसाइज करना मतलब उसको वेरी ब्यूटिफुली ही यूज टू एक्सप्लेन थिंग्स, राइट. तो आफ्टर दैट वो एक सर्जन थे, बट ही लेफ्ट दैट एंड उन्होंने पूरा अपने आप को पोएट्री और राइटिंग में डिवोट कर दिया. सो ये सारी चीजें उतना मायने नहीं रखती. आप बस इतना याद रखना कि ही इज अ ब्रिटिश पोएट, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, और उनका नाम हु रोट दिस अ थिंग ऑफ ब्यूटी. नाउ the very first question in your mind would be A Thing of Beauty. What is this poem about? So before diving deep into the explanation, I will just read the poem, and while reading the poem I will explain it. I'll read 5 lines and I'll explain that 5 lines, and then we'll go on. Okay, so let's start the explanations. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase, it will never pass into nothingness, but will keep a bore quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Okay, so basically what he wants to say in these 5 lines कि a thing of beauty means something which is very beautiful that will never fade or that will never pass. मतलब ऐसा कोई भी ब्यूटीफुल चीज जो होगी वो कभी खत्म नहीं होगी.
ठीक है, इट विल नेवर टर्न इनटू नथिंगनेस। ऐसा नहीं होगा कि इफ समथिंग इज ब्यूटीफुल वो कभी अचानक से जाके खत्म हो जाएगी और वो उसके कोई एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स समथिंग विच इज ब्यूटिफुल विल बी इटर्नल, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा और वो लाइफ टाइम तक उसकी ब्यूटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, एंड इट विल नेवर 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 फेड। So in this 5 lines, poet wants to set up where base of the poem by saying that what exactly is a beautiful thing, ठीक है, उनको उनके हिसाब से एक ब्यूटीफुल थिंग क्या होती है, ठीक है। हाउ डू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज को डिस्क्राइब करूं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से, दैट लाइक इफ समवन इज लाइक बाय लुक्स ब्यूटीफुल, इफ यू आर प्रिटी फॉर लाइक बाय फेस, तो हो सकता है कि आप बुढ़े हो रहे हो, जब बुढ़े हो रहे हो तो दैट ब्यूटी इज जस्ट गोइंग, आपको रिंकल्स आ रहे हैं, लाइक दैट ब्यूटी विल नॉट स्टे, राइट। So that's temporary and we will not call it beautiful because what the person, like what that person is from inside, that is beautiful, right? So that is not beauty. For kids the beauty is basically what that person is from inside. अगर कोई है जो बहुत honest है, बहुत kind है, तो और उसकी काइंडनेस जो होगी वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, राइट, दैट इज ब्यूटी, ठीक है। एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल बी इटर्नल, इटर्नल इन द सेंस कि अगर वो इंसान मर भी जाए तो द डीड्स ही और शी हैव डन, वो उसने किसी की हेल्प की है या फिर जो भी द डीड्स द पर्सन हैज डन, वो हमेशा रहेगा, राइट, उसका कभी कोई एंड नहीं है। यू कैन नॉट से कि नहीं ठीक है वो खत्म हो गया, राइट। So the beauty he was describing in this poem is this only, the quality, the beauty in the sense, like the quality of beauty, like what kind of beauty is it, वो quality क्या है, वो beauty है, right, ठीक है। So moving on, the other next line, इसमें देखो उन्होंने कहा है कि quite उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, a boar quiet for us, a sleep full of sweet dreams, health and a quiet breathing. Boar means होता है a shady shelter, मतलब something that is जो छाया देता है, जैसे मतलब पेड़ की छाया है तो that is a boar। तो उनका कहने का मतलब है कि like a boar is a very beautiful thing। जैसे वो क्यों ब्यूटीफुल है, क्योंकि it helps anyone and it will increase, not it will never be something, it will that fades into nothingness. So what this is what he wants to say. Now moving on to the next line, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to earth, spite of despondence, of inhuman dearth, of noble natures, of gloomy days, of all unhealthy or darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away, pall from our dark spirits. अब देखो पहले जो 5 लाइन्स थे उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया दैट व्हाट इज एग्जैक्टली लाइक इज ब्यूटी अकॉर्डिंग टू हिम। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है दैट ब्यूटी इज समथिंग जो हमें लाइक इस अर्थ से बांध के रख रही है। इन्होंने ना इसमें बुरी चीजें लाइक व्हाट आर द बैड थिंग्स, लाइक डिप्रेशन, डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है डिप्रेशन, देन ग्लूमी मतलब सैड डेज, एंड इनह्यूमन डर्थ एंड इनह्यूमन एक्ट में बेसिकली ऑल दीज थिंग्स, जो भी ये डिप्रेशन है, जितने भी सैड डेज हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अर्थ पे, इन सब के बाद भी वी आर लिविंग ऑन इट, ठीक है। तो उनके कहने का पॉइंट ये है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद भी हम अर्थ पे रह रहे हैं, इट मीन्स दैट अर्थ इज गिविंग अस समथिंग वेरी ब्यूटिफुल दैट इज बाइंडिंग अस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अ फ्लावरी बैंड, दिस ब्यूटी क्या है, दिस ब्यूटी इज अ फ्लावरी बैंड। ये ब्यूटी एक फ्लावर का बैंड है जो हमें अर्थ पे बांध के रखता है डिस्पाइट ऑल ऑफ द सफरिंग्स, ऑल ऑफ द डिप्रेशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो इतने इस जितने भी ये मैंने लाइंस पढ़ी इसका यही मीनिंग है, मतलब आप याद कर लेना, डिस्पाइट ऑफ डिप्रेशन, सफरिंग, सैड डेज, सॉरोज एंड यही सारी चीजें, डार्क डेज एंड ऑल। तो दैट इज इट, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड यंग एंड sprouting a shady boon,
for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in. ठीक है, okay, fine. Live in and clear rills that for themselves a cooling convert make. Okay, against the hot seasons and midst of the forest. Fine. Okay, now what he is describing, इन्होंने शुरू किया है इस लाइन में, सच द मून द सन ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून. ठीक है, उनके कहने का मतलब है कि देखो, पहले उन्होंने ब्यूटी डिस्क्राइब कर दिया, फिर उन्होंने व्हाट इज द रीजन कि हम अर्थ से बाउंडेड हैं. नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सन, मून, ट्रीज दैट इज ओल्ड एंड यंग, जो हमें इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस. ट्रीज उन्होंने बोला शेडी बून, स्प्राउटिंग अ शेडी बून. दीज ट्रीज आर गिविंग अस ब्लेसिंग्स. These all are blessing, not just trees but sun and moon. This all of things are blessing. For simple sheep such are daffodils with green world they live in and clear rills that for themselves a cooling convert against a hot season in the midst of forest break. देखो, इनके कहने का मतलब कि daffodils means he meant flower. Okay, daffodils का mean daffodil is a flower, but यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डेफोडिल का नाम लिया है, बट ही मेंट ऑल द फ्लावर्स विथ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव. तो उन्होंने पहले सन मून डिस्क्राइब किया, फिर उन्होंने डेफोडिल्स बताया, फ्लावर्स के बारे में बताया, दैट द फ्लावर्स वी हैव फ्लावर्स दैट इज ब्यूटीफुल दैट बाइंड अस टू लिव ऑन अर्थ. फिर उन्होंने रिवर स्ट्रीम्स बताए कि रिल्स इट्स मेंशन कि क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कन्वर्ट में. तो रिल्स का मतलब होता है कि स्ट्रीम्स, द रिवर स्ट्रीम्स. सो उन्होंने ये भी बताया व्हाट आर द थिंग्स. अगर बोले कि ब्यूटीफुल थिंग्स उन्होंने मेंशन किया, तो दीज आर द थिंग्स. उन्होंने ये भी बताया कि अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मतलब हॉट सीजन्स के लिए भगवान ने हमें फॉरेस्ट भी दिया, राइट. भगवान ने नेचर हैज फॉरेस्ट एंड ट्रीज फॉर दिस हॉट सीजन्स. तो वी हैव एवरीथिंग फॉर एवरी सिचुएशन that will help us to live on this earth even though we have a lot of sufferings around us, right. So इतने लाइन का सिर्फ यही मतलब है. उन्होंने ब्यूटीफुल जो चीजें उसको मेंशन किया है, दैट इज इट. उसके बाद है rich with sprinkling of fair musk rose bloom, such too with the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drinks pouring on to us from the heavens brink. Now, यहाँ पे क्या है, उन्होंने पहले मेंशन कर दिया कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स. ठीक है, लेट्स कीप द ऑर्डर. पहले उन्होंने मेंशन किया व्हाट इज ब्यूटीफुल, then what is sufferings, and then what are the things that is suffering for us. Then he mentioned all the beautiful thing, and now he's saying that all these things, like whatever we have, वो ना एक particularly he is trying to tell the story of a soldier. ठीक है, कि how beautiful is that if a soldier is dying for protecting everyone else. उन्होंने ना यहाँ पे mention किया है grandeur मतलब someone who is of high rank and we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. उनका मतलब he wants to take immortal drink का मतलब होता है, मैं बता देती हूँ पहले ही. immortal drink मतलब basically he wants to mention nectar, जो flower में जो juices होता है ना, that is nectar. So what in the end of in 5 lines what he wants to say कि देखो, even we have all the sufferings, उसके बाद we have these beautiful things to cope up with that. We also have that stories of the soldiers, the people who he keeps on continuing describing the beautiful things. ठीक है, तो वो उसमें mention करते हैं कि we have this musk rose that is he describes the rose ki how beautiful it is to see in the nature and all. तो वो सारे surrounding अपने describe करते हैं with this adding this कि देखो, think of a soldier who dies for us on a war. Imagine कि how beautiful is this. That is something which is basically what do we say,
समथिंग, अ नेक्टर पोरिंग फ्रॉम द हेवेंस, समथिंग, एक ऐसा अमृत जो स्वर्ग से हमारे ऊपर बरस रहा है, वो ये सारे ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ठीक है। एंड लाइन में ही पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रेक, मतलब समथिंग, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं दैट इज गेटिंग पोर्ड ऑन ऑल ऑफ अस फॉर लाइक इटर्निटी, फॉर इटर्निटी। एंड उनका यही मतलब है, ही वॉन्ट्स टू से कि ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर बेसिकली समथिंग वेरी प्योर, समथिंग वेरी, दीज आर इमॉर्टल ड्रिंक्स, ठीक है। ही मीन्स, हिंदी में हम इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत बोलते हैं। सो दिस इज ऑल, ठीक है। दिस पोएम हैज नथिंग अ लॉट, लाइक बहुत सिंपल पोएम है, बहुत, इट्स ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग एंड ऑल, यही सारी चीजें। एंड देखो इसमें ना वो भी नहीं है, लिटरेरी डिवाइसेस भी बहुत नहीं है, बहुत क्या है ही नहीं, एक दो मेटाफर्स हैं जो मतलब मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने आई चेक इट और मैंने PYQs भी चेक किया, तो आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई मेटाफर का बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। बाकी आप तो आराम से लाइक अगर लाइन में आइडेंटिफाई करने को देगा तो एलिट्रेशन और ये सब तो आप ऑब्वियसली यू कैन इजिली डिफाइन। सो या लिटरेरी डिवाइसेस है नहीं, हमने एक्सप्लेनेशन और समरी पढ़ ली है। what we have right now is the themes of the poem. Okay, now themes are very important in this poem because the poem is all about, you know, romanticizing the nature. So while you romanticize something, उसमें बहुत से themes आते हैं, ठीक है, बहुत सारे। So we have like, देखो इसमें unlimited themes है, I will give some 5 themes जो that will stick to the poem और ये पूरा कवर करेगा, you don't need to read anything extra. The first is, wait, हाँ, first is eternal joy. Okay, eternal joy means the theme को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते हैं। it basically has कि beautiful things are the sources of our eternal joy, ठीक है। फर्स्ट हो गया ये कि आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाउ दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्सेज टू इटर्नल जॉय, उसको यू कैन कीप ऑन राइटिंग, इसमें बहुत लिख सकते हैं। दिस पोएम इज समथिंग कि आपने सिर्फ, इफ यू नो द ओवरव्यू ऑफ द पोएम, यू कैन राइट लिटरली 1000 वर्ड्स लाइक दिस, इट्स वेरी इजी। आफ्टर दैट रिलीफ फ्रॉम सफरिंग, हाँ, हाउ डू वी गेट रिलीफ फ्रॉम सफरिंग? by nature, how nature help us from healing. तो describing nature, उस relief from suffering में आप basically nature को describe कर सकते हो कि how it helps us in healing, ठीक है। The poem has mentioned all of it. Then connection with nature, poet का nature से connection, human का nature से connection, nature का human से connection, you can describe it. Obviously everything is dependent on each other, ठीक है। Contrast between sorrow and nature, fine. Sorrow and beauty, fine. That is nice. Contrast between sorrow and beauty. अगर देखो, if someone is, एक example देते हैं, if someone is very, मान लो, if someone is traveling or walking on the road in a very hot summer days, then and he or she is very tired, he or she needs to rest, then what nature has provided us, all those suffering the person is going through in that particular moment, उस moment पे the trees will give the bower, I mean trees have bowers or the shades, so the person can rest there. So sorrow and suffering, I mean beauty, sorrow and beauty, the sorrow we are going through, उसका contrast beauty से, that how beauty heals the suffering inside us. And last is romanticism and idealism. That romanticism and idealism means ki how everything, if we romanticize, like how this poem romanticize the beautiful thing and beautiful thing with sufferings, ठीक है। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको भी रोमांटिसाइज किया है कि हाउ ब्यूटिफुली दे गो विथ ईच अदर, ठीक है। इसमें बेसिकली यू हैव टू डिस्क्राइब द पोएम. So I think this is it for the video. We don't have much in this video, like in this poem, and we have 2 more poems left, and उसके बाद से short stories है. तो I think I'll start short stories उसके बाद से, अभी से, like poems तो होती रहेंगी, poems are like very small.
शॉर्ट स्टोरी मैं कर दूंगी उसमें वीडियोस फॉर वीडियोस नॉट टू गेट वेरी लॉन्ग, आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन द स्टोरी लाइन. उसके बाद से मैं थीम्स वगैरह पे डिस्कशन करूंगी विच विल बी वेरी इजी टू कवर, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है. सो या थीम्स हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू वरी मच, जस्ट कीप रीडिंग योर सिलेबस. एटलीस्ट सिलेबस से आप वो रखो, थोड़ा फेमिलियर हो. बाकी डोंट बी गेट टफ. एग्जाम से एक दिन पहले भी इफ यू आर रीडिंग ऑल ऑफ इट तो वो कवर अप हो जाएगा. इंग्लिश इज नॉट दैट टफ सब्जेक्ट. So yeah, that's it. And for that answer which I said, I think no one really asked for it, but fine. In the previous video, but ठीक है, I have already made it because my sister is in class 12th and I'm making the answers for her as well. तो I'm making one answer जिसमें आप सिर्फ उस आंसर को पढ़ के जाओगे तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर. मतलब अगर थिंग ऑफ ब्यूटी है, अगर आप इस पोएम को पढ़ रहे हो तो मेरे उस आंसर जो एक पेज का नोट है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग एल्स. ठीक है, सॉरी. तो उससे कवर अप हो जाएगा. फाइन. So this is it. And now if you have any doubt also, there's one thing, I have made a telegram channel for the answers which like I'll upload there. मैंने सोचा कि like किसी को मेल करना and all might get a tough work for me और आप लोग के लिए भी. तो I'll keep the description में I'll keep the link for the telegram. If you want to join, you can join. I will upload the answers there. It will be very easy for you to read all of it. That's it, I guess. And okay, fine. You can also follow me on Instagram and we can have one-on-one doubt sessions. अगर आप चाहते हो टू अंडरस्टैंड द पोएम अलग से, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलरली लाइक आपको समझाऊँ पोएम ऑन एनी Zoom call or meet, so I'll do that as well. So I'll give you can request me there. So I'll put my Instagram here. You can follow me there, text me there if any doubt, and join the Telegram channel. And all the best for your exams. Study well, and I will see you in the next video. Bye.